क्वेश्चन ये, शिप ए is sailing towards northeast with velocity इतना, मतलब कि क्या है, सिचुएशन क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में सेल कर रही है इधर की तरफ विद वेलोसिटी 30i प्लस 50 j कैप, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, इसका एक्स कंपोनेंट कुछ है 30 और वाई कंपोनेंट 50 है। हाँ, आई ईस्ट में है और ये नॉर्थ में है। Ship B is at a distance of 80 kilometer east. Okay. Ship B is at a distance of 80 kilometer east and 150 kilometer north of ship A. अच्छा, यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर अगर ये शिप है ना, जो दूसरा वाला शिप है वो इससे ईस्ट में इन्होंने बोला है कि इट इज 80 किलोमीटर ईस्ट, 80 किलोमीटर पर है, और 150 किलोमीटर नॉर्थ में। यहाँ पर शिप ए है और यहाँ पर शिप बी है, एंड सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये सेल कर रहा है वेस्ट की तरफ विद 10 किलोमीटर पर आवर। A will be at a minimum distance from B. अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने सॉल्व कैसे किया इसको। A with respect to B. A with respect to B ना, अच्छा पहले ऐसे ही सॉल्व करके देखते हैं। A with respect to B, A with respect to B अगर आप लोगे तो वेलोसिटी ऑफ A निकालोगे। अब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगी, बी ए बी इन एक्स डायरेक्शन तो होगी हमारी 30 + 10 40 किलोमीटर पर आवर। ओके ना आची, एंड इन द Yes, sir. वाई डायरेक्शन इट I विल also बी, got that. हाँ, you just try to observe it where you have gone wrong. VABY will be 50 minus 0, it will be 50 kilometer per hour. Now that means what we have done is they both are at rest. Now B has been made at rest. B रुक गया है और सिर्फ A मूव कर रहा है, और with what angle, ये वाला जो एंगल होगा phi, this phi angle will be, let me draw it. This phi angle will be tan phi is equal to 50/40, 5/4। अब देखो इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, अब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे करके, तो आपको मिनिमम डिस्टेंस लेना है। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बस और सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए होगा। ये मिनिमम डिस्टेंस है ना यार, ये तो बहुत इजी है। अब देखो इसमें तुम्हें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। देखो क्या है कि दिस इज 80 किलोमीटर, दिस tan phi you know, this tan phi is this 5/4, so this distance if you want, this particular perpendicular distance, this one, this will be 80 tan phi. So this will be 80 into 5/4, which is 20 into 5, यानी कि 100 किलोमीटर। Now if this is 100 kilometer, the above distance will be obviously 50 kilometer, it will be. Now it is 50 kilometer. Now this angle is phi. So if this angle is phi, this will be 90 minus phi.
So this angle has to be 90 minus 5. This is 90. This has to be 5. Since this is 5, we can easily find out this distance also. One more thing. This is 100 kilometer. This is 80 kilometers. So you can find out this distance. This is what? 30 square plus 50 square. Now, since this is 50, so if you want to find this distance, this is 90 degree, this distance I'm saying. So you will have to find, this will be 50 sine phi. So it will be 50 into sine phi will be what? This is tan phi, 5, 4. This will be root over 25 plus 16. Root 41. Sine phi will be 5 by root 41. This you have got. So now you know the velocity is what I have done now. Distance is different. This distance is 80 square. 80 square plus 100 square. And this is 50 into 5, 250 by root 250 by root 41. अच्छा कैलकुलेशन में फंस रहे हो तुम लोग, देखते हैं. Now the time taken will be the velocity in this direction 50 square plus 40 square. Velocity into time should be equal to your root 80 square plus 100 square plus 250 by root 41. अब ये वेलोसिटी इंटू टाइम के इक्वल है, मतलब वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 50 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इंटू टी. दिस कैलकुलेशन ओनली यू आर गेटिंग स्टक. ये कैलकुलेशन बड़ी आ रही है क्या? Now see, for this what I can suggest you, how will you do it? Take this 10 outside, so remove it, so this will be removed. Now further what you can do is, this will become root 41 into t is equal to 64 plus 100 root 164 plus 25 by root 41. So you will get 41 into t is equal to root 164 into root 41 plus 25. This value you have to calculate. See, for now what I can do is, Sir, I think root 164 is 2 root 41. So, 2 root 41. yes, sir. एक मिनट. 4. Correct, very good. So it will be root 2 root 41. So it will be 2 into 41. 2 into 41 plus 25. It should be easy. 82 plus 25. 107. So t is equal to 107 by 41. 107 by 41 approximately should be 2.6. Answer you have got. This is B. Over. Actually, how did you solve it? We are getting the answer very easily.
So I did one mistake while considering the minimum distance. This has to be the minimum distance ना, perpendicular में. शिजेता तुमने कैसे किया था? Sir, I could do it, but my calculations were wrong. The calculation went wrong ना. The concept was same. हाँ अश्का तुमने किया था? हाँ सर, मेरा आ गया था। तुम्हारा क्या था? अरे वाह, वेरी गुड. और कौन है? लव्य. पार तुमने किया था? लव्य लास्ट क्लास में मैंने ही पढ़ाया था, रिलेटिव मोशन. जिसने नहीं किया है वो देख लेना. अब मैं नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, रिवर बोट प्रॉब्लम और वगैरह ये है ना. इसको तुम जैसे मैंने पिछली बार बताया था, इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो. जो नॉर्मल मेथड है उससे भी कर सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस निकाल के, पर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. देखो अब मैं बताता हूँ तुम्हें रिवर बोट प्रॉब्लम. रिवर बोट प्रॉब्लम थोड़ा सा वो होता है. देखो रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है सिस्टम. रिवर बोट प्रॉब्लम और एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम दोनों के दोनों एक तरीके से ही होते हैं. एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम दोनों एक ही तरह से होते हैं. इसमें होता क्या है कि रिवर होता है, यहाँ पे ये रिवर है, दिस इज रिवर, जो कि फ्लो कर रही होती है ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही होती है. और होता क्या है कि यहाँ से इस पॉइंट से बोट मूव करना चालू करती है. अब यूजुअली क्या करते हैं ये लोग क्या है ना, तुम्हें कुछ टर्म्स देते हैं, जैसे कि इन्होंने कुछ चीजें बताई है कि है ना, रिवर की जो वेलोसिटी जिससे वो रिवर मूव कर रही है वो वी है, कुछ वैल्यू देंगे. और दूसरा, ये लोग जब क्वेश्चन बोलते हैं तो कुछ टर्म्स देते हैं, जैसे कि रोइंग वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, रोइंग वेलोसिटी, या फिर और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. ये कुछ टर्म्स देते हैं. इनका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई भी बोटमैन जब मूव कर रहा होता है ऐसे, तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं है, ये होती है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. ये जो चीज आर्ची और सजिता, अश्का, ये लोग तुम देख रहे हो ना, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो वीपीआर होता है, ये होता है ये टर्म रोइंग वेलोसिटी या और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ऐसे करके. अब क्या होता है कि ये जैसे ऐसे मूव कर रही है, मतलब किसी डायरेक्शन में मूव किया इसने, तो हमें क्या करना होता है, हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि आफ्टर व्हाट टाइम डी इट विल रीच द अदर एंड. जैसे इन्होंने रिवर की विड्थ दी होगी तुम्हें, इसकी विड्थ है कुछ सपोज डी, तो बोलेगा वीबीआर इज द रोइंग वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. अब ये फाइंड आउट करके बताओ कि आफ्टर व्हाट टाइम दिस बोटमैन, when it is rowing inside this river, after what time it will reach the other end. तो उसके केस में मैं तुम्हें सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूँ, इजीएस्ट तरीका सॉल्व करने का. वैसे सॉल्व तो तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो. इसका इजीएस्ट तरीका ये होता है, सबसे पहले, क्योंकि देखो जब ये बोट मूव कर रही है ना, तो ये ऐसे जाएगी. अब जरूरी तो नहीं है ये यहीं पहुंचे, इसकी भी कंडीशन होती है यहाँ एग्जैक्ट कॉर्नर पहुंचे, हो सकता है ये आगे पहुंच जाए इधर. तो उस केस में हमें ड्रिफ्ट निकालना पड़ेगा. ये एक्स होता है ड्रिफ्ट.
तो ये सब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली में क्या करते हैं, हमारे पास जो मेथड है वो समझने की कोशिश करना, जो मैं बता रहा हूँ। मेथड इज यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बोट in x direction, absolute velocity, vbx is velocity of boat with respect to earth. with respect to earth मतलब अगर यहाँ पर रिवर नहीं होता तो वो जिस वेलोसिटी से, अपनी वेलोसिटी से, जो मतलब रोइंग, जो जिससे वो रो करता है ना, वो और पानी का इफेक्ट ही नहीं होता, तो उसके केस में जो वो जिस डायरेक्शन में जाता है इस वेलोसिटी से, वो हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. And similarly, in y direction, we have to find velocity of boat with respect to earth in x direction. कैसे बताता हूं? अगर सपोज ये एंगल थीटा है, तो तुम लोग ये करोगे, देखो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद तो तुम शॉर्टकट वगैरह अपने आप लगा सकते हो, जैसे कि नंबर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, वो तुम अपनी कॉमन सेंस से लगाओगे, बता भी दूंगा मैं कब कब कैसे कैसे लगाओगे. लेकिन समझ लो ये मैं, इसमें प्रॉब्लम बहुत आती है बच्चों को सॉल्व करने में, कंफ्यूजन होता है. तो यहाँ पे देखो, सब तुम क्या करोगे, सबसे पहले वीबीएक्स निकालोगे. कैसे? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन द एक्स डायरेक्शन ये है वीबीआर साइन थीटा. वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन वाई डायरेक्शन ये है वीबीआर साइन कॉस थीटा. नाउ वीबीआर साइन थीटा माइनस वीबीआर साइन थीटा इज इक्वल टू वीबीएक्स माइनस वीआर बोल सकता हूं मैं. वाई? velocity of boat, absolute velocity of boat minus velocity of river is the velocity of boat with respect to river in the x direction, जो कि माइनस वीबीआर साइन थीटा के इक्वल है. क्लियर ना? ऐसे ही नहीं समझ में आया. समझ में नहीं आया? हाँ, ये साइन थीटा कॉस थीटा कैसा है वो भी. मैंने वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व किया है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में. रिजॉल्विंग तो तुमको आती है ना? नहीं सर. अरे ये तो मैंने तुमको शुरू शुरू में बताया, तो कई कई बार बताया क्लास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तो बताया है आज का. अगर तुम्हारे पास ये फोर्स होता है, वेलोसिटी होती है, थीटा होता है, तुम इसको रिजॉल्व करना नहीं जानते, इसको वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा में. ऐसे नहीं जानते फोर्सेस को रिजॉल्व करना? नहीं सर. अरे ये तो मैंने बहुत बार बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था तुम्हें. चलो अगर तुम्हें नहीं याद है तो अभी याद रख लो. जब भी तुम्हारे पास कुछ भी चीज होती है, जैसे सपोज तुम्हारे पास कोई भी फोर्स या कोई वेक्टर है, ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं अपन, इसकी जगह कोई फोर्स भी होती, तो कोई भी डायरेक्शन, कोई भी वेक्टर अगर एंगल थीटा बना रहा होता है किसी भी डायरेक्शन से, तो आप उस वेक्टर को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक तो वी कॉस थीटा और एक वी साइन थीटा. ठीक है? हाँ सर. ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया, वैसे भूल गया तो. बाकी लोगों को तो पता है ना? आर्ची यू नो ना दिस वन? Yes, sir. हाँ सर. सबको पता है. तो देखो, तो ये अब मैंने यही चीज करके कि वी बी आर इस ए बी डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि वी बी आर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वी बी आर कॉस थीटा होगा और इस डायरेक्शन में वी बी आर साइन थीटा होगा. देखो ध्यान से. अनुष्का, अनुष्का ठीक है? हाँ सर. अब मुझे एक डायरेक्शन तो पॉजिटिव, क्योंकि वेक्टर से एक डायरेक्शन पॉजिटिव और एक डायरेक्शन नेगेटिव लेना होगा. मतलब यहाँ पर मुझे ही पता चल गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर इन एक्स डायरेक्शन वीबीआर साइन थीटा है.
जो किस डायरेक्शन में है। अब मुझे ये पता है कि ये जो वेलोसिटी मैंने निकाली है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन एक्स डायरेक्शन, VBR x, जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये VBR x, ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इन एक्स डायरेक्शन होती है। हम अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकाल रहे हैं तो वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी ना। हाँ सर। अश्का तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। तो ये से यही चीज मैंने की है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन एक्स डायरेक्शन ये है VBR sin थीटा, तो मैंने इसलिए इसको VBX माइनस VR लिखा है। यहाँ पे VBX क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे ही y डायरेक्शन में मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन y डायरेक्शन मेरे पास VBR cos थीटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अब वेलोसिटी ऑफ बोट इन y डायरेक्शन पर रिवर की वेलोसिटी वर्टिकल तो है नहीं कुछ, तो 0 होगा। तो इससे ना, इस एक्टिविटी से मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन आ जाएगा, विच इज VR माइनस VBR sin थीटा, और वेलोसिटी ऑफ बोट इन y डायरेक्शन आ जाएगा, विच इज VBR cos थीटा। जब मैंने एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल लिया एक्स डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, अब चीजें निकालना आसान है। अब जैसे सपोज मुझसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द बोट टू क्रॉस दिस AB डिस्टेंस, तो तुम क्या करोगे, दिस टाइम टेकन इज इक्वल टू VBY D by VBY, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो ये जो हो जाएगा D by VBR cos थीटा। और अगर तुम्हें ये निकालना है आगे कितना ड्रिफ्ट होगा, तो VB, तो x की वैल्यू क्या होगी, VBX इंटू दिस टाइम t, विच इज VR माइनस VBR sin थीटा इंटू D by VBR cos थीटा। ऐसे निकालते हैं। तो मैं जो तुम्हें तरीका बता रहा हूँ ना, इस रिवर बोट प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए, यही चीज एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम में भी यूज होती है। तो मतलब तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्वेश्चन कोई भी है, तुम्हें एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाई डायरेक्शन निकालना है, और अगर टाइम निकालना है तो फिर डिस्टेंस जो विड्थ है उसकी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम कर दो, सॉरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कर दो वाई डायरेक्शन में, तो टाइम निकल जाएगा। और ड्रिफ्ट निकालना है तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी इनटू टाइम, दिस विल बी डिस्टेंस। तो बेसिकली तुम्हें ले देके ये करना होता है, VBX और VBY निकालने होते हैं। बाकी चीजें तो अपने आप निकाल लोगे। ठीक, समझ में आया, मेथड समझ में आया? हाँ सर। अब सपोज तुम लोगों को बोला जाए कि बताओ व्हाट इज, मतलब कंडीशन व्हेन boatman has to reach the other end, boatman reaches point just opposite to where he started। मतलब इसने कंडीशन क्या बोली है ना, कंडीशन ये बोली है कि बोटमैन को रीच करना है पॉइंट बी पे, जस्ट जहां ए से स्टार्ट किया और उसको बी पर पहुंचना है, मतलब बी पर ही पहुंचना है, कहीं आगे पीछे नहीं होना चाहिए वो। तो उसके केस में ऑब्वियसली तुम क्या करोगे कि ये ड्रिफ्ट जो है एक्स, ये 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ड्रिफ्ट एक्स 0 होगा तो VR माइनस VBR sin थीटा ये 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू VR बाई VB होगा। मतलब किस एंगल पे वो स्टार्ट करे, बोटमैन किस एंगल पे स्टार्ट करे जिससे कि वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, यानी कि बी पर, जैसे कि ड्रिफ्ट कुछ रहे ही नहीं। तो उसके लिए कंडीशन ये होगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू VR बाई VABR। और ये आता कैसे, जब हम इस ड्रिफ्ट को 0 कर देते हैं।
क्लियर है? और दूसरी चीज ये होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है, एक बार ये पूछते हैं, कंडीशन व्हेन बोटमैन क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तुम जानते हो कि जो टाइम है वो तुमने निकाला है डी बाई वी बी आर कॉस थीटा। अब ये टाइम मिनिमम कब होगा, इसको ऑब्जर्व करके बोलो। ये टाइम मिनिमम जब होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो जो टी मिनिमम होगा वो होगा डी बाई वी बी आर, कॉस थीटा की वैल्यू 1। सिंपल हो गया खत्म। और ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 पे होता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। मतलब अगर बोटमैन को सबसे जल्दी पहुंचना है अपोजिट एंड पे, तो उसको 0 डिग्री से, मतलब परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ रिवर स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से। उसके केस में ड्रिफ्ट भले ही होगा लेकिन वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा। और ड्रिफ्ट भी तुम निकाल सकते हो एक्चुअली। इसी केस में ड्रिफ्ट ये होगा x इज इक्वल टू वी आर इंटू डी बाई वी बी आर। समझ आ गए? कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? अब तुम लोग मुझे बताओ कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा अब। No, sir, no confusion. नो कंफ्यूजन? शशिता कोई कंफ्यूजन है? No, sir. अशिका कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। लव्य, पार्थ, कोई कंफ्यूजन? तो पता ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहे। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, है ना। लो भैया मेरा क्वेश्चन ट्राई कर दो। बेसिक क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आने के लिए।
Sir, first answer is 7.5 seconds. No, first answer is 10. They're saying 10 seconds. Cos 37 degree is 4 by 5. हाँ 4/5. ये वैल्यू तो याद ही कर लो तुम लोग. Yes, sir, it's 10. Yes, sir. 10 ना. बी पार्ट सॉल्व करो.
Sir, is the answer 20? No, the drift is 60 meters. They say. Yes, sir, I was also thinking it's 60, but as I saw that the velocity of river and the velocity of the boat is in the same direction, so I subtracted them, and so I got 20. But we are adding them. Why? Because they are in the same direction. Na? They have told you. See, because in my case, when I have told you, the direction of VBR was at an angle theta, means with the river it was 90 plus theta. But here in this case, they have told it is rowing at 5 meter per second at 37 degree from the direction of river current. Okay. That mistake you would have done. And also one more thing you have to keep in mind, it is rowing velocity. Rowing velocity means velocity of boat with respect to river they have given. In this particular case, when they have given in this way. The boat is moving like this. The width they have given is 30 meter. River velocity is 2 meter per second. Now the boat VBR is 5 and it is moving at 37 degree with the river. River velocity is 2 meter per second. Accordingly, you will have to find out the velocity VBX and VBY.
वो नहीं आया क्या? किसी का नहीं आ रहा क्या आंसर? ऐसा अश्का आ रहा तुम्हारा? सिजदा आया? से मेरा आ गया। आ गया। अच्छा, अश्का तुम्हारा आया? पार्थ लव्य तुम लोगों का आ रहा है कि नहीं? तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ड्रिफ्ट 60 मीटर्स होगा ना? हाँ, 60 मीटर हो रहा है। Sir, can you please show the next question? Okay.
See, the way I have told you this concept, na, riverboat problem, the same thing is with aircraft wind problem. For homework, I'll give you one aircraft wind problem for you to solve. In the case of aircraft wind problem, there in the only in place of boat there is aircraft, and in place of river there is wind. The rest everything is same. पार्थ, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? पार्थ तो कुछ बोल नहीं रहा था, क्या हो गया? हाँ ठीक है, हो रहा है ना? हाँ अच्छा, हाँ मुझे लगा था यार तुम लोगों का कुछ गड़बड़ है। पार्थ का भी यही है, शायद सेम चीज लवे के साथ भी हो रही है कुछ। लव कौन से वाले में? ऊपर वाले में? तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो एक बार सॉल्व कर देंगे। टाइम कम बचा है, तुम एक बार ट्राई करोगे? तो ट्राई करके देखो। ओके सर, मुझे ओके अपनी सर, मुझे अपनी वर्किंग पर व्हाट्सएप कर देना, जहाँ भी तुम ओके सर, ओके सर। तुम्हें सेंड कर दूंगा। हाँ लव है, तुम बोल रहे हो ना माइनस कैसे करेंगे? देखो मैंने बताया था ना, इसमें तुम्हें VBX निकालना होता है, VBX और VBY। इसमें क्या होता है ना, देखो जब यहाँ पर क्या होगा, VBR, इसमें हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो ये होगी, VBR cos 37, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर इन द एक्स डायरेक्शन है। ये क्या होगा, VBX -2। इसीलिए VBX जब तुम निकालोगे तो वो हो जाएगी 2 + VBR cos 37। इसमें तुम ऐड कर रहे हो, VBR ने क्या दिया हुआ है, रिवर वेलोसिटी 2, रोइंग वेलोसिटी 5 है। तो तुम यहाँ पर जो VBX निकालोगे वो 2 + 5 × 4/5 होगा, यानी कि 6 VBX होगा। और VBY निकालोगे तो VBY -0 = VBR sin 37। तो VBY जो तुम्हारी निकलेगी वो होगी 5 × 3/5, 3। और टाइम टू क्रॉस द रिवर जो हो गया वो विड्थ 30 मीटर दिया हुआ है, तो टाइम = 30
डिवाइडेड बाई VBY, ये हो गया तुम्हारा 30/3, 10 सेकेंड। और ड्रिफ्ट जो होगा ये x की डायरेक्शन में, ये मैंने बताया ड्रिफ्ट क्या होता है, x इज इक्वल टू VBX इंटू टाइम t, ये हो जाएगा 6 इंटू 10, 60 ऐसे। So is the first answer 6 seconds? अच्छा, दिस वन फर्स्ट आंसर इज 6 सेकेंड। हाँ करेक्ट, फर्स्ट आंसर इज 6 सेकेंड। वन यू गॉट राइट। लव, अभी बताओ समझ में आया? मैसेज करके तो बताओ मुझे, चैट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। मतलब टेक्निक ये है, VBX नेट वेलोसिटी है वो क्या √41 है? हाँ वो √41 है, करेक्ट है। तुम सॉल्व सही कर रहे हो। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर राइट में आंसर लिख देता हूँ, अगर तुम लोगों का आए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। आंसर ए का 6 सेकेंड है। फाइंड शॉर्टेस्ट टाइम, नेट वेलोसिटी तुम्हारी √41 है। और क्या पूछा है इसने? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट है 24 मीटर। ए का आंसर। और बी का, हाँ पहुंच सकता है, इट्स पॉसिबल, इसका आंसर है पॉसिबल है। और डायरेक्शन इन विच ही शुड रो इज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 विद AB डायरेक्शन। AB डायरेक्शन मतलब वो वर्टिकल डायरेक्शन से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू, ये थर्ड का जो आंसर है वो है 100/9। ये चेक कर लेना अपने आंसर्स, अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो एंड करें।